Hello everyone. Today I am going to start with the chapter Rural Development. In previous video I have explained you the meaning of the rural development, what is the need of the rural development. Today we are going to continue with this chapter with the topic rural credit. So let's start with it. So here when we talk about the sources of rural credit, there are two sources of rural credit, non-institutional sources and institutional sources. We'll study it one by one. Come to the non-institutional sources. It includes money lenders. Money lenders are those people who are having a lot of money, who lends their money to the people. उनका काम ही ब्याज पे पैसा देना होता है, right? They lend their money to the people who are needy and they charge high rate of interest from that person. And apart from only charging the high rate of interest, they also keep a security, right? The other non-institutional sources is traders and commission agents. जो ट्रेडर्स है, जिनके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो कमीशन लेके पैसा देते हैं, तो ये सारे हमारे क्या हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस. वो भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और एज अ सिक्योरिटी कुछ ना कुछ रखते हैं. रिच लैंडलॉर्ड, जो बहुत लैंडलॉर्ड्स हैं, जिनके पास जमीन है बहुत ज्यादा, जिनके यहाँ कोई काम कर रहा है, टिलर्स हैं, तो टिलर्स को जब पैसा चाहिए दे कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द रिच लैंडलॉर्ड्स, तो वो भी अगेंस्ट सम सिक्योरिटी एंड ऑन सम इंटरेस्ट दे गिव द लोन. नेक्स्ट इज द रिलेटिव्स. जब कुछ नहीं समझ में आता है तो हम रिलेटिव्स के पास जाते हैं, यार पैसे की जरूरत है, पैसे दे दो थोड़े से, राइट? तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट का सच नहीं होता है, कोई टाइम बाउंड नहीं होता है, कोई आप यहाँ पे ये नहीं होता कि हमें कुछ सिक्योरिटी रखनी है, राइट? सो दीज आर द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. नाउ व्हेन इट कम्स टू इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज. गवर्नमेंट ने कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई हैं, दोज हु हेल्प द पुअर और नीडी पर्सन और द फॉर द टू गेट द लोन or to get the credit for the farming purpose or for the non farming purpose, like whatever their need is for the rural areas, right? Next is NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. This bank is especially made for the agriculture and rural development only. So this bank provides lots of loans at low rates of interest. Commercial bank credit. Commercial bank also give the credit to the farmers, or for the they can say that for the farming purpose, agriculture purpose or non-agriculture purpose. Government is there to help. Self-help groups are there. Self-help groups are means people make their groups, they save their money, they collect their money and then give it to the person who is the needy one. जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको पैसा इकट्ठा करके दे देना. ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने. देन रीजनल रूरल बैंक्स. ये रीजनल जो बैकवर्ड एरिया, ये रीजन के लिए बैंक्स बने थे जो रूरल एरियाज को ही कवर करते हैं. So these are the institutional sources जो गवर्नमेंट के अंडर में जो बैंक्स हैं, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, राइट? These are the institutional sources. So but here when we talk about the rural banking, इसका critical appraisal हमें देखना चाहिए. Institutional sources are also facing a lot of problem here. What are the problems they are facing? We can see that overdue concern, inadequate amount of sanction, less attention to poor or marginal farmers. So here we can see that overdue concern. We'll study it one by one. First we'll study about the overdue concern. Overdue concern means agricultural loan default rates. Default rates का मतलब farmers जो है ना जानबूझ के पैसा वापस नहीं करते, डिफॉल्टर बन जाते हैं कि हमारे पास पैसा है ही नहीं देने के लिए. लेने के टाइम पे दे गो टू द बैंक, ले लेते हैं पैसा, फिर कहते हैं कि हमारा पैसा माफ करो. सुसाइड के बहुत सारे केसेस ऐसे सच हो जाते हैं, जहाँ पे जिसको तो सच में नीड है उसकी बात अलग है, बट जहाँ पे नीड नहीं है बहुत सारे लोग इस तरह से भी डिफॉल्ट बहुत ज्यादा हो जाता है. सो एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट्स हैव बीन कॉन्स्टेंटली हाई. आप देख सकते हो 50% ऑफ द डिफॉल्टर्स वर कैटेगराइज्ड एज विलफुल डिफॉल्टर, जो जानबूझ के नहीं देना चाहते. कुछ तो होते हैं जो मजबूरी है ही नहीं, पैसे कहाँ से दे, लेकिन कुछ के पास पैसा होता है बट वो जानबूझ के नहीं देना चाहते. अच्छा है ना, हमारा भी माफ हो जाएगा काइंड ऑफ. तो 50% डिफॉल्टर्स विलफुल डिफॉल्टर्स थे. इफेक्ट क्या हुआ? देखो बैंकिंग सिस्टम के को बहुत ज्यादा देखो, तो इतना सारा पैसा जो फार्मर्स के पास गया एग्रीकल्चर के लिए, उन्होंने नहीं दिया पैसा वापस. कुछ लोगों ने डेलिबरेटली विलफुली नहीं दिया, तो उसकी वजह से स्मूथ फंक्शनिंग जो बैंकिंग की थी उसमें बहुत ज्यादा हैरेसमेंट हो. इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, कि बहुत ज्यादा भी कई बार अमाउंट सैंक्शन हो गया फार्मर्स को, जो फार्मर्स ने अपने प्रोडक्शन पे ना लगाकर उस पैसे को वेस्ट किया, यूजिंग इट फॉर द अनप्रोडक्टिव पर्पसेस. तो ये भी पैसे की बेकदरी थी. The third is less attention to poor or marginal farmers. Now here we know that कि हाँ किसको एक्चुअली में देना चाहिए. फार्मर को हमने एक बना दी कि फार्मर को देना. फार्मर अमीर भी होता है, फार्मर गरीब भी होता है, तो एक्चुअल में जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को देना चाहिए था उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया. क्यों नहीं दिया गया? बिकॉज अगेंस्ट
सिक्योरिटी कोई अगेंस्ट में रखने के लिए नहीं थी, और क्योंकि ऑब्वियसली अगर बैंक आपको लोन दे रहा है तो बदले में कोई ना कोई सिक्योरिटी रखेगा. जो बहुत स्मॉल फार्मर, उसके पास कोई एसेट नहीं, इज नॉट हैविंग एनी एसेट, ही इज नॉट हैविंग एनीथिंग टू कीप एज अ सिक्योरिटी, सो ही वाज इग्नोर्ड बिकॉज ही वाज नॉट हैविंग एनीथिंग टू कीप, ही वाज अनेबल टू गेट द loan very easily. But commercial banks help them, but other formal institution doesn't help them. They doesn't provide any facility to them for the credit, but only the commercial bank help them a little bit. What is agricultural marketing? When we talk about marketing, हमें पता है marketing होता है भी बाजार में सामान बेचना, लेकिन बेचना कैसे है? अगर मैं कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रही हूँ तो प्रोड्यूस करने के बाद एकदम से मार्केट में नहीं जाती, कुछ टाइम वो मेरे पास भी रहती है. मेरे पास स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, मार्केट तक ले जाने के लिए मेरे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, मेरे प्रोडक्ट को सेव करने के लिए उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव पैकेजिंग होनी चाहिए, ताकि मैं कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकूं अपने प्रोडक्ट की तरफ. तो दीज आर ऑल कम्स अंडर द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. लेट्स स्टडी दिस वन बाय वन. व्हाट वी स्टडी इन दिस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? द मीनिंग, व्हाई रिक्वायर्ड, मेजर टू इंप्रूव, alternative marketing channels. So let's study with agricultural marketing. Agricultural marketing covers the various services involved in moving an agriculture product from the farm to the consumer. Farmer से consumer तक पहुंचाने के लिए जितने भी बीच में services लगते हैं, that comes under the agricultural marketing. इसमें क्या क्या आ जाता है? You can understand this. Assemble करना, assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution to the consumer, final consumers. So these all comes under the agricultural marketing. What is the effect? Effect is the farmer can dispose their surplus product at a reasonable price. फार्मर को मजबूरी में सस्ते में नहीं बेचना पड़ेगा. फार्मर बढ़िया से अपना प्रोडक्ट जो अच्छे से बेच पाएगा अगर उसको ये फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई तो. फील्ड स्टडी, व्हाई रिक्वायर्ड एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम? क्यों चाहिए? क्योंकि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स थे वो मैनिपुलेट करते थे अपने अकाउंट्स को, राइट? अपने फॉल्टी वेइंग कर लिए, गलत वेट नाप लिया, ठीक है, अपना वेइंग मशीन, वेइंग स्केल जो है वो गलत कर लिया. फार्मर को पता है कि ज्यादा है बट वो गलत नाप लेते थे बड़े ट्रेडर्स. नहीं तुम ज्यादा नहीं लाए हो, कम लाए हो, काइंड ऑफ अपने मैनिपुलेट कर देना अपने अकाउंट्स को कि मैंने तो इतना ज्यादा लिया ही नहीं था, तुमने इतना ज्यादा दिया ही नहीं था. क्योंकि फार्मर के पास बहुत लेस बार्गेनिंग पावर है, वो अपने लिए स्टैंड इतना ज्यादा नहीं ले पाया, राइट? तो यहाँ मैनिपुलेशंस बिग ट्रेडर्स ने किया. मार्केटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी फार्मर के पास. जब फार्मर ले जा ही नहीं सकता कहीं पे, अगर उसके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मार्केट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा? जो उसको पता ही नहीं चलेगा पहली बात कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है. तो जो लोकल में उसके पास जितना प्राइस उसे मिल रहा होगा वो उतना ही प्राइस देगा, उतना काम कर लेगा. ठीक है, तो वहाँ सस्ते में भी बेच रहा है. उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. जब स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो उसको पता है उसका प्रोड्यूस खराब हो जाएगा, है ना? तो व्हेन ही नो दैट उसका प्रोड्यूस खराब हो सकता है, व्हाट ही विल डू? He will sell it as early as possible. जितनी जल्दी वो बेच सकता है. एंड वो क्या करेगा? उसको सस्ते में भी बेच देगा कि मेरे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं, खराब ना हो जाए, जितना पैसा आ रहा है वो तो आए, ऐसा ना हो खराब हो जाए, कुछ ना आए. सो स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी जिसकी वजह से वो बाद में बेटर प्राइस पे नहीं बेच पाए. अगर स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल होती तो they could have kept it with them with their storage or cold storages, and they may have sold it afterwards when they get the better price of that. But that was not available. That's why agricultural marketing was very needed. Lopsided growth means very slow growth. ग्रोथ देखो बहुत अच्छी खासी थी. किस किस एरिया में थी? लेकिन टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में. लेकिन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को निगलेक्ट किया गया था. आफ्टर 1991 एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इतना ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया. ठीक है, जबकि वी नो दैट अवर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर ओनली. These provide the livelihood to the millions of people, but still these both sectors were neglected. That's why the growth was very lopsided or very slow growth. Then here comes measures to improve agricultural marketing. क्या क्या हम कर सकते हैं agricultural marketing को improve? How can we help the farmers? First, different policy instruments. We must go for the policy instruments. Government should make some policies regarding that. Government should go for the regulated market. जैसे हम लोग सुनते हैं ना, भाई शनिवार का बाजार लग रहा है, बुध बाजार लग रहा है. सो रेगुलेटेड मार्केट्स जिससे बेनिफिट हो फार्मर्स को भी, प्लस फार्मर्स का मतलब सेलर्स को भी और कंज्यूमर को भी. एंड द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज आल्सो शुड बी इंक्रीज्ड. पॉलिसी ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग शुड आल्सो बी गिवन. सो वी कैन लर्न इट एज DRIP, DRIP. I hope you understood this. Now we'll study this one by one. Different policy instruments. In order to protect the farmers,
The government has initiated the following policies. क्या क्या policy government ने ली? Minimum support price. Minimum support price is fixing the minimum price. ठीक है कि इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर तुम्हारा बाहर नहीं बिकेगा MSP पे तो हम तुमसे खरीद ही लेंगे. This is more than the market price, MSP, right? Maintenance of the buffer stock. Government has to maintain the buffer stock. Why the government maintains the buffer stock? To create whenever there is surplus in the production, so what government does is government buys the product and keep it in the buffer stock. Whenever there is you can say the floods or there is drought or there is earthquake, whenever there is the problem or there is a shortage of the production, they may take out the crops, or they may take out of the food crops from the buffer stocks, and they may sell, or you can say that distribute it to the poor people. PDS is where the persons get the needy items, basic necessities like kerosene, wheat, rice, etc. at the price below than the market price. सस्ते में, weaker section के लिए, poor section के लिए ये गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, हम कहते हैं ना राशन की दुकान खुली हुई है, राशन शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप्स, सस्ता बस सस्ती शॉप्स जो गवर्नमेंट की खुली हुई होती है, वो PDS सिस्टम के अंदर आती है. Then here comes regulated market, कि इतना रेगुलेटेड मार्केट्स होनी चाहिए जहाँ पे सेलर्स और ब्रोकर्स की माल प्रैक्टिसेस ना हो, जहाँ पे कंज्यूमर और सेलर दोनों को बेनिफिट हो. देन हियर कम्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी करनी चाहिए. वी शुड इम्प्रूव, गवर्नमेंट शुड स्पेंड, राइट. What are the infrastructure facilities? There are two types of infrastructure facilities, economic and social. Economics includes like transport, railways, you can say electricity, right, banking, and in social we call it education, water supply, health also we consider in it. The last one is policy of cooperative. Cooperative का मतलब हम कहते हैं cooperate करो, मतलब मिलजुल कर. So here marketing societies are formed by the farmers to sell the output collectively. फार्मर्स अपनी सोसाइटी बनाते कि सब लोग मिलके इसको यहाँ पे इकट्ठा करो अपने सामान को, और अपनी मर्जी से प्राइस कोट करके हम आगे बेचेंगे. अगर अलग अलग बेचते हैं तो उनको प्रॉफिट इतना नहीं होगा क्योंकि उनका आपस में ही कंपटीशन होगा. लेकिन जब सब एक हो जाएंगे तो वो सब मिलके एक ही प्राइस कोट कर सकते हैं. ऑल कैन गेट द बेनिफिट, राइट, फ्रॉम द प्राइसेस. द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच आई विल बी कवरिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो इज डाइवर्सिफिकेशन मेथड्स. This I will be covering in my next video. Till here, beta, if you face any problem, you may ask me anytime. Thank you. God bless you.